principles. That is very very significant, क्योंकि second paragraph जो आएगा अभी वो इसके साथ continuation है, तो it will be good to recall this कि एक तो आत्मा अजर अमर है, deathless and indivisible. दूसरा body is insignificant and transient, कि body की कोई अपने आप में सत्ता नहीं है और वो आती जाती रहती है, नष्ट होती रहती है, नश्वर है. और तीसरा कि स्वधर्म पे ही कायम रहना है, स्वधर्म करना ही है. इसलिए वापस से स्वधर्म की बात शुरू की थी. और उसमें क्या कहा था कि ऑल एग्जिस्टेड बिफोर अवर अर्थ. तो स्वधर्म भी हम पैदा हुए उससे पहले, हमारे से पहले हमारा स्वधर्म पैदा हुआ है. यानी कि स्वधर्म हमारा जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है. और यानी कि हम पैदा होने के बाद में अपना स्वधर्म तय नहीं करते. स्वधर्म तो पैदा होने के साथ ही तय हो जाता है. सो दिस इज प्रिसाइसली द केस विद स्वधर्म. वो क्या है? इन दिस वर्ल्ड we have nothing else to rely on. To disown one's swadharma is to disown oneself. To commit suicide, उसको आत्मघात कह दिया है कि स्वधर्म को छोड़ना अपने आप को नष्ट करने के बराबर है, सुसाइड के बराबर है. ओनली इन हार्मनी विद स्वधर्म कैन बी मूव फॉरवर्ड. कि स्वधर्म के बिना तुम प्रगति कर ही नहीं सकते. दैट इज वाई वी शुड नेवर लूज साइट ऑफ आवर स्वधर्म. तो स्वधर्म का इतना अधिक महत्व है. नाउ वी कम टू द 5th पैराग्राफ. कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ती हूँ. ठीक है. Okay. Swadharma should in fact come easily and naturally, but because of several temptation and delusion, this does not happen or becomes extremely difficult. Even if it is practiced, the practice gets vitiated. मैम क्या बोलते हैं इसको? Vitiated. Vitiated. यानी विशिएटेड कैसे समझाएंगे इस वर्ड को? ओके, मुझे ठीक है, समझ गई. नष्ट जैसे हो जाना. हाँ, वो गलत हो जाना. प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ये. The temptations and delusions that strive with thorns the path of Swadharma have various forms. However, on analysis we find only one thing at the bottom of it all: a restricted and shallow identification of oneself with one's body, I and those related to me through the body. Set the limits of my expansion. Those outside the circle are a line of enemy. Besides, the attachment is restricted to only the physical bodies of the I and mind. In this double trap, we start putting up all sorts of little walls. Almost everyone does this. The size of the enclosure may vary, but they are enclosures all the same, and they are not bigger than 1 feet. One man's enclosure is the family, another the nation. One wall divides the so-called upper and lower caste. मैम क्या बोलते हैं इसको? कैसे प्रोनाउंसिएशन? लोअर caste. Lower caste. Okay. Another divide
divides the people on the basis of religions. Wherever you turn, you see nothing but such a wall. Even in this jail, we differentiate between ordinary convicts and political prisoners. 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 It is as if we cannot live without such walls. We revel in living in puddles. But what does this result into? Only in the multiplication of the germ of mean and vicious thought and destruction of the healthy state of Swadharma. My God, क्या 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 बोला है. Oof, oof, oof. What catches whose attention, or is there something that you first want to get the meaning right and then say? मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले मुझे पता था विश्वास करो सफलता पाओ, अभी ऐसा है स्वधर्म करो और सफलता पाओ. विश्वास भी किस चीज पे करोगे? खुद पे. Yes. और खुद पे विश्वास करो तो स्वधर्म की एकमात्र चीज है जो तुम्हारी है. So Swadharma should in fact come easily and naturally. Should. Ideal जो कहो तो वो बहुत natural चीज है. But this is more easily said than done. बहुत सारी चीजें हैं जो उसके आड़े आती है स्वधर्म के. क्या है? टेम्पटेशन, लालच, स्वार्थ, कोई भी चीज का जो लुभाती है अपने को, वो सारी चीजें. एंड डिल्यूजन. डिल्यूजन यानी कि जो सच में इम्पोर्टेंट नहीं है वो इम्पोर्टेंट लगना, जो सच में हमारा नहीं है उसको हमारे पाने की लालसा होना. और इसी प्रकार का जो भी भ्रम है, जो सच नहीं है उसको सच जानना, समझना, जो अच्छा नहीं है उसको अच्छा मानना, और जो हमारा नहीं है उसको अपना मानना. हर एक प्रकार के डिल्यूजन, अनेक प्रकार के डिल्यूजन होते हैं. But because of these several temptations and delusions, this does not happen. Means what does not happen? कि अपना स्वधर्म हम आसानी से जाने समझे, ये आसानी से होता नहीं है. क्यों? क्योंकि हम भ्रम में होते हैं, लालच में होते हैं. और becomes extremely difficult, यानी कि स्वधर्म जानते नहीं है या जानने में हमें मुश्किल होती है. Even if it is practiced, the practice gets vitiated. यानी यदि हम स्वधर्म में स्वभाव से ही कुछ स्वधर्म वाली बातें कर रहे होते हैं, मनुष्य मात्र का एक स्वभाव है और उस स्वभाव से हम मनुष्य का धर्म निभा रहे हैं, वो करते करते भी हमारे ये जो प्रैक्टिस है गेट्स विशिएटेड. उसमें कुछ खामियां आ जाती है, दाग पड़ जाता है, वो विचलित हो जाते हैं, हम वहां से भटक जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कचरा जैसे आ जाता है. it does not continue to remain. हम कई बार आपस में भी जब बात करते हैं तो हम इस बात के चर्चा करते हैं कि हाँ, मैंने ये एक अच्छा काम शुरू किया था और करती हूँ, लेकिन बीच में ही कहीं छूट जाता है. तो दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड कि स्वधर्म यदि हम स्वभाव से भी यदि करते हैं तो भी उसमें बाधाएं उत्पन्न होती है और हम उससे भटक जाते हैं.
द टेम्पटेशन एंड डिल्यूजन, जिनकी जो पहले जो अर्चने की बात की, दैट्स ट्रू विथ थॉर्न्स द पाथ ऑफ स्वधर्म। ये जो हमारी टेम्पटेशंस हैं और डिल्यूजन्स हैं जो हमारे को राह से भटकाती हैं, इसकी तुलना की है रास्ते में पड़े हुए कांटों के साथ। स्वधर्म के रास्ते के कांटे को दो हेडिंग के अंदर डाला है विनोबा जी ने, गीता में भी यही कहा है, टेम्पटेशंस एंड डिल्यूजन्स। हैव वेरियस फॉर्म्स। अच्छा, इनके अलग अलग प्रकार हैं। ये जो थॉर्न्स हैं टेम्पटेशन और डिल्यूजन के, और बाकी का सारा पैराग्राफ उसके प्रकार ही बता रहा है। सुन के एकदम से ऐसे भर गया सिर मेरा तो। However, on analysis we find only one thing at the bottom of it. इन सब की जड़ में एक ही चीज है। किसके? टेम्पटेशंस और डिल्यूजन्स के जड़ में, चाहे जितने उसके प्रकार हों। A restricted and shallow identification of oneself with one's body. ये बहुत 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 बड़ी बात कह दी मुझे लगता है कि हम भटक क्यों जाते हैं स्वधर्म से। तो हमारा दुश्मन कौन है? स्वधर्म हमारे को अच्छे से न मालूम पड़े और न हम उसको पालन कर सके, उसके लिए हमारा दुश्मन है हमारी संकीर्ण सोच, लिमिटेड नॉलेज। क्या? कि मैं ये शरीर हूं। अपने आप को शरीर तक सीमित कर लेना ही उसकी जड़ में है। जब हम अपने आप को सिर्फ ये शरीर समझ के कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, उसके अंदर से ये स्वधर्म के रास्ते के कांटे बनते हैं। बहुत 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 बड़ी बात बोल दी। हम योग में भी ज्ञान और अज्ञान का फर्क यही करते हैं। अज्ञान का मतलब एब्सेंस ऑफ नॉलेज नहीं है। अज्ञान का मतलब ये है टू थिंक ऑफ योरसेल्फ एज ओनली द बॉडी। ज्ञान का मतलब यही है टू नो दैट यू आर जस्ट नॉट द बॉडी, यू आर द पुरुष, यू आर द स्पिरिट। तो जब हम ये इतना संकीर्ण विचार रख लेते हैं कि हम ये शरीर हैं, उसको लेके हम कुछ भी जानेंगे, करेंगे, सोचेंगे, तय करेंगे, वो सब हमारे स्वधर्म से हमको भटकाएगा। यानी कि स्वधर्म हमारे शरीर के साथ नहीं पैदा हुआ। ये बात उन्होंने पहले वाले पैराग्राफ में कही। हमारे पैदा होने से पहले ही हमारा स्वधर्म निहित था। तो शरीर के साथ स्वधर्म नहीं पैदा होता। तो ये जो हम लोगों के, मेरे माइंड में ये आ रहा है, बोलना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अक्सर ये जान लिया जाता है कि ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ इसलिए इसका धर्म ब्राह्मण वाला है। क्षत्रिय में पैदा हुआ अर्जुन इसलिए उसका धर्म क्षत्रिय है। वो क्षत्रिय का तो उसका शरीर था। जो मनुष्य मात्र पैदा हुआ है, जो जीव है, उसका ही अपना वो स्वधर्म लेकर पैदा हुआ है, और जो कि उसके पैदा होने से पहले ही निहित था। यह शरीर तो सिर्फ उस धर्म को निभाने का एक साधन है। तो इस बात को सोचने के लिए थोड़ा सा अपने दिमाग को हमें बहुत खुला करना पड़ेगा। तो स्वधर्म को ठीक से जानना, समझना, और जिस क्षण में हमारे को समझ में आता है उस क्षण को पकड़ कर रखना, ताकि उसको कुछ नाम दे दो, कुछ उसको शब्द दे दो, कुछ उसको पहचान दे दो, ताकि उसके सहारे से तुम वापस उस तक आ सको। भटकना तो होगा ही होगा, क्योंकि वो इस शरीर की अपनी लिमिटेशन है। सत्व रजस तमस से बना है, तो वो रजस उसके अंदर चेंजेस तो लाता ही रहेगा, लेकिन उस चेंजेस में इतने चेंज ना हो जाए कि हम पूरे ही भटक जाए, हम उसमें वापस आ सके। तो यह भी हमारा अपने आप के प्रति बहुत अच्छा एक योगदान होगा।
So a restricted and shallow identification of oneself with one's body is at the bottom of all these thorns that are strewn on the path of Swadharma in the form of temptations and delusions. Right? I and those related to me through the body set the limits of my expansion. मैं उतना ही एक्सपांड यानी मैं जो अभी ओपन माइंड रखने की जो बात कर रही थी, मैं अपने आप को उतना ही विस्तृत कर सकता हूँ जितना मेरा कॉन्सेप्ट है अपने आप के बारे में। यदि मैंने अपने आप को सीमित रखा है आई एंड माय फैमिली तक, तो फैमिली के बाहर जो भी है वो मैं अपने आप को वो उसको पराया कर देती हूँ। तो हमने लास्ट टाइम याद है हमने हायरार्की ऑफ ड्यूटी की बात की थी। हाँ प्रियंका, यू हैड आल्सो आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन दैट। ये वापस वही बात आ गई। फर्स्ट ड्यूटी इज टुवर्ड्स सेल्फ बोलते हैं, और उसके बाद में हम थोड़ा सेल्फ का जो इमीडिएट कॉन्सेप्ट है कि ये बॉडी एंड माइंड, राइट? लेकिन बॉडी एंड माइंड पे सीमित नहीं होता है। बॉडी एंड माइंड एंड देन दोज हु आर near and dear ones whom we interact with every day, that group of people, then our society, the community, the city, the nation, and it goes on to environment, to all the living beings, to even the physical environment, the living, non-living, the entire earth, then the entire planetary system, the solar system, the galaxy, and the galaxies. You can expand and expand and expand to become infinite, unlimited. Because that is what you are. हम योग में, सांख्य में पुरुष की व्याख्या क्या करते हैं? Without beginning, without ending. It is subtler than the subtlest. And it can neither be destroyed, it can never be made, created. So that is what we are. Each one of us is. तो हम अपने आप को कितना छोटा करके हम अपने आप को डिफाइन करते हैं, अपने आप को समझते हैं, वो ही हमारी लिमिटेशन बन जाती है और उतना ही हम एक्सपांड कर पाते हैं। तो वो कूप मंडूक वाली बात है। वो कहते हैं ना कि एक कोई के मेंढक को समुद्र का मेंढक मिल गया, समुद्र में मेंढक कहते नहीं है, वो बात और है, लेकिन कहने के लिए तो उसने कहा तुम जहाँ रहते हो वो कितना बड़ा है? तो इस बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है। तो ओके, अपने कुएं का पूरा एक्सपांड बताता है कि इतना, इससे बड़ा है, कि हाँ इससे भी बड़ा है, इससे बड़ा कुछ होता ही नहीं है, यही सबसे बड़ी चीज है। और हम लोग जब भी हम इस बात से हम काम करते हैं तब हमारा स्वधर्म का हम त्याग करते हैं, हम स्वधर्म से भटक गए हैं। तो अब ये सोचो कि स्वधर्म को जानने, समझने और स्वधर्म से जीने के लिए क्या कुछ आवश्यक है। Each one of us will have our own things that we are limiting ourselves with. कौन सी लिमिटेशन से हमें बाहर निकलना है, जो हमारे को इमीडिएटली दिखाई देगी हम उसके ऊपर पहले काम शुरू करेंगे, और जो सबसे करीब है जो लिमिटेशंस, उसको तोड़ते 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 हमें वसुदेव कुटुंबकम वाली बात तक पहुंचना है, तब हमें हमारा स्वधर्म ठीक से समझेगा। Those outside the circle are aliens or enemies. क्योंकि यदि हम दूसरों को दूसरा समझते हैं तो ये दुश्मनी वाली बात आ ही जाती है। यदि वसुदेव कुटुंबकम, तो कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी दूसरा नहीं है, कोई भी पराया नहीं है। लेकिन वो वसुदेव कुटुंबकम में हम नहीं करते। मेरे को एक याद आ रही है एक घटना, एक इंसिडेंट wherein this lady
बहुत घर में लड्डू गोपाल है और खाना बनता है उसका, पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। कुछ बाजार से भी कुछ आया खाने पीने का नाश्ता, खाने से पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। और आज कुछ खास त्योहार है, हाँ, तो जैसे जन्माष्टमी है तो खास लड्डू गोपाल के हिसाब से खाना बना है ना, तो आज उसमें कांदा लहसुन नहीं डालना है, तो लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। तो मैंने कहा यदि लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए कांदा लहसुन नहीं बनाते हो तो घर में कांदा लहसुन रखते ही क्यों, कि नहीं फिर वो अलग से बाद में बनाएंगे और वो खाएंगे। तो ये हम जानबूझ के अधर्म करते हैं ऐसा, और मैंने बहुत लोगों को देखा है ये कांदा लहसुन के भगवान को भोग नहीं लगता तो तुम क्यों खाते हो, तुम भी तो भगवान हो। यानी कि जो चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है वो तुमको पता है, लेकिन उसके बावजूद आउट ऑफ टेम्पटेशन एंड दिस काइंड ऑफ डिल्यूजन इज मेकिंग यू डू दिस। फॉर मी स्वधर्म की चोरी अलग अलग कौन बनाएगा? नहीं, तो ये भी तो इसी दुनिया का हिस्सा है ना। लॉजिक देखो, देखो व्हाट इज गोइंग एट द रूट ऑफ इट, इसके रूट में यही मिलेगा, हमारे जो अपनी आपके बारे में संकीर्ण विचारधारा है। Besides, the attachment is restricted to only the physical bodies of the I and mine. ये मेरे परिवार का हिस्सा है, इसको कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए, ये जैन है, इसको कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए। बाकी लोग कर सकते हैं, बाकी लोग खा सकते हैं, मी एंड माइन। ये खाएंगे तो मेरे घर वालों ने खाया, यानी कि मेरे को भी पाप लगेगा, मुझे बुरा लगेगा, उसके ऊपर मैं हक जताऊंगी कि तुम्हारे को नहीं खाना चाहिए। राइट, वसुदेव कुटुंबकम। यदि तुम भी ईश्वर का अंश हो, ईश्वर हो, तो तुम्हें भी उसका फिर भोग नहीं लगना चाहिए, और यदि तुम्हें लग सकता है तो उसको भी लग सकता है, और उसी को लग रहा है। ये हम जब समझने लगेंगे तो अपने आप ही सही चीज करने लगेंगे। कॉट इन दिस डबल ट्रैप, ये डबल ट्रैप हो गया कि एक पल में तो मैं ये हूं और एक पल में मैं ये नहीं। हाँ, जब जचेगा तब मैं वैष्णव हूँ, और जब जचेगा तब मैं शूद्र हूँ। Restricted only to physical bodies of I and mind. Caught in this double trap, we start putting up all sorts of little walls. हमने छोटी छोटी दीवारें बना रखी है, यही दीवारें, कि ये भगवान को लगेगा और ये भगवान को नहीं लगेगा, ये भी एक दीवार हो गई। ये मेरे भक्षण योग्य तो है लेकिन प्रसाद के योग्य नहीं है। यदि हम अपने आप को ईश्वर का जीव समझे, माने, अपना जो कॉन्सेप्ट है खुद का बॉडी से बियॉन्ड कर लें, तो इसको अलग कर ही नहीं सकते। ये छोटी छोटी जो दीवारें हमने बना रखी है कि अच्छा, हाँ, वो तो क्रिश्चियन है, वो लोग तो नॉनवेज खाते हैं, वो लोग को खाने देना चाहिए। हाँ, उनके पास में मेरे को नॉनवेज नहीं जमता है, मैं तो वैष्णव हूँ, मेरे को देखने को भी नहीं जमता है, तो मैं उधर नहीं जाऊंगी। दीवार खड़ी की ना हमने। तो खाने में, खाने का एग्जाम्पल वो एक्चुअली याद आ गया, जानबूझ के नहीं लिया, लेकिन ये खाने पीने का तो हम लोग सभी करते हैं ना, खाना तो सभी खाते हैं, तो ये शायद ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। लेकिन हम व्यवहार की भी बात करो तो ऐसा ही होता है। तो व्यवहार में भी कि इससे ऐसा व्यवहार अपेक्षित है, इससे ऐसा व्यवहार अपेक्षित नहीं है, कोई हमारे हिसाब से व्यवहार करे तो ठीक है, हमारे हिसाब से व्यवहार नहीं करे तो सब गड़बड़ है। क्या बात है, रुपिंदर आई, सालों बाद देख रहे हैं हम इसको, है ना? यस।
मैं भी वही सोच रही थी, लेकिन आप बोल रहे थे तो मैं बोली जाने दे, बाद में बात करते हैं। वेलकम वेलकम रूपिंदर। थैंक यू मैम, नमस्ते। हम्म मेरे को अभी आवाज आया। ठीक है। So, caught in this double trap, we start putting up all sorts of little walls. Almost everyone does this. हम में से कोई भी इससे अछूता नहीं है। हम सब करते हैं किसी न किसी रूप में, क्योंकि हम में से कोई भी इतना अधिक ओपन माइंडेड नहीं है जो सच में वसुदेव कुटुंबकम की तरह सोच सके, कर सके। Almost everyone does this. The size of the enclosure may vary. हाँ, किसी का अपना मानना, अपने सारे सगे संबंधी रिलेटिव्स जो है उनको अपना मानता होगा। कोई है जो इमीडिएटली हमारा मैं, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, उतने में खत्म हो जाता है। हाँ? कुछ बोलेंगे कि नहीं, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं वो भी सब हमारे अपने हैं, वो कुटुंबीजन है। तो होते हैं ना कई ऐसे लोग, और कई ऐसे भी होंगे जो रोज के उनके जो मिलने जुलने वाले हैं, फ्रेंड्स और फैमिलीज, फ्रेंड्स की भी फैमिलीज, उनको भी वो अपना सकते हैं, उनको भी वो अपना मानते हैं। तो ओनली थिंग इज कि कितना बड़ा हमारा घर है, हम खुद डिसाइड करते हैं। मैं अक्सर एक एक्टिविटी कराती हूँ और कई लोगों को देखा है मैंने। यू कैन ट्राई दिस, करना है टू फाइंड आउट हाउ लार्ज इज योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर स्पेस। विजुअलाइजेशन है एक। तैयार है? करेंगे? यस करना है? yes. ओके, दो जने तो हाँ बोल रहे हैं, बाकी कोई जवाब नहीं दे रहा है। हाँ मैम। करना है? हाँ मैम। हाँ, ठीक है। Yes. ओके, अंजी, प्रियंका, ओके, लेट्स डू इट। Just get ourselves ready. Sit with your eyes closed comfortably. And just breathe. Watch your breath. See your normal breath. Maybe take 3 breaths, long and slow. Make it as long as you can. Breathe in, breathe out as long as you can. Do this 3 times. And come back to your normal breath. Just keep watching your breath. Imagine a ball of white light on top of your head. As large a ball of white light on top of your head. And a lot of white light is pouring on you. You are surrounded by this white light. All around, you find it flowing over you. Now, let's give this white light a certain shape. The shape of your choice. Shape it with your own hands. You can move your hand over the outer edge of the shape and pat it to make it firm. With the hands of your mind, just give it a shape. If you want, you could be seated in it, you could be standing in it,
as much space as you feel comfortable. Just give it a proper shape above your head, over your face, around your body, close to your limbs, hands, legs, and feel comfortable in it. Give it a shape and size that you're comfortable with, that you feel safe and secured in it. You feel nice, warmth in it. Put yourself in the body shape that you like. It could be a sleeping, it could be standing, it could be sitting, whichever way you like. Choose your position, choose the shape and size, and create a protective covering around you with this white light. It is your safe space. It is all yours. Only you can penetrate this. You can pat it with lots of love and compassion and safety for yourself all around you. Pat it and keep tapping it, patting it, and saying that you are safe and comfortable, secured in this white light of your own choice. This is you and your personal space. It's all for you and you alone. Only if you give permission to anyone to enter, can anyone enter this. Nobody else can penetrate this wall. Make it so firm and secure with lots of love and prayer. Breathe. Be in your most comfortable position here and keep your eyes open or closed, ears open or closed, just as you feel comfortable. Do what you feel most happy and secure with. Be there in your own safe space. Breathe. On the count of 5 to 1, we come back to the present. 5, 4, 3, 2, 1. We come back to this time, this place on Zoom, and gently open your eyes. So, anyone would like to share what was your space? How large was your space? What was its shape? मैम रुपिंदर here. मेरा shape था in a sitting position. Can you hear me? No, रुपिंदर तो थोड़ा, बोल like- रही है, लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहे तेरे. फिर से बोल. I was visualizing the light in a sitting shape around me What shape? for a while. Sitting shape में, जैसे sitting के around में अच्छा, shape हाँ, में sitting. था. Okay. And what was sitting, the right. shape overall? That was conical. Okay. And how large? हाँ. So पहले मुझे अच्छा लगा. After a while I was feeling heaviness in my chest. फिर आस्ते आस्ते वो ठीक था, ऐसे ही था. Okay. In my lungs like that, वैसे I am लग रहा sorry. था. Please forgive me. Thank you. I love you. करती रहे थोड़ी देर.
Okay, हाँ जी, Anyone ठीक else? है ना? When I was visualizing that time, color is purple, Okay. purple color, and size and shape तो नहीं, लेकिन that I am very sleepy mood. Now I am fresh, feeling good, fresh, charged. Okay. Okay. Anjali, Priyanka, Payal, do you want to share? It was very relaxed. Yes, yes, Okay, Anjali ma'am. continue. Please go ahead. No, you continue. I've done this with Suchi, that's why I'm saying. So I was Yeah. keeping quiet for that reason. Okay. Continue, Priyanka. So the light when you told to visualize, so it was a white light in at top of the head, and then it turned into a nice big circular bubble or kind of a thing in which I was sitting, and it was very secured and secured space. So I was totally relaxed, no Wow. anxiety, How no. large was it? It was ever expanding, and Oh, wow. yeah, it was ever Great. expanding. It was very Excellent. beautiful. Excellent. हाँ Payal. So, ma'am, for me, I was trying to include a bigger space like the forest and everything. Then it stopped and it came back to myself. Okay. And how large Yeah. was your final space? Okay. What it tells you is the amount of space you feel comfortable in. हमारे को दीवारें इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि बिना दीवारों के हमें अनसेफ लगता है. हम Suchi, अपना और पराया हमारे को आइडेंटिफिकेशन चाहिए. वही Suchi, I wanted to share. हाँ बोलना. I wanted to share that only. Ki last time when I had done this with you, it was, I could feel a bubble, like how Priyanka said, but there was, and I was walking in it and it was moving with me. It was big enough for it to move with me and not too large. This time, it was like again Priyanka said, ever expanding. Means it was limitless almost, still round, and yet at the same time, I was doing a ballet inside it. Great. Means Great. actually वो बोलते हैं ना वो circus में वो करते हैं ना वो going on the top and upside अरे down वाह. and everything. उतना सब वो it was I actually was seeing myself doing a ballet. Last time I was walking, this time I was doing a ballet. So The overall feeling was very क्या बोलते हैं it's I will not say exhilarating, I would say it was very positive and very positive, yes. happy feeling. And what is important is that we must continue to expand. I like the phrase that Priyanka and you are using, that continuously expansion is happening. If we are in that space, we are growing. But at the same time, it's not comfortable for everybody to have an open space and allow yourself to continue to grow. There could be that at some time we feel happy in that growth space. There are other times in our life when we want an enclosure. We do not want it to continue to expand. And it's perfectly okay, because for some time you need to pause also. Just as Sattva and Rajas are part of us, Tamas also is a part of us which needs to get its due, and we need Tamas along with us to continue with Sattva and Rajas. So, how large is our enclosure is what you have seen just now. And it is always good to have it expand and expand and expand. So, how much more
of these thorns will be strewn on our path is decided by our enclosure. हमारा enclosure बड़ा है तो the thorns will be fewer. हमारा enclosure जितना छोटा होगा उतने ज्यादा हमारे पास में ये thorns होंगे, उतने temptations और उतने ज्यादा delusions होंगे. So continue to expand. I and mine caught in this double trap, we start putting up all sorts of little walls. Almost everyone does this. The size of the enclosure may vary, but they are enclosures all the same. Ever expanding तो है, लेकिन पूरा expansion नहीं है. We didn't see ourselves as part of the entire earth or part of this entire planet. Planet भी बोलो तो limitation है. Enclosure हुआ. Galaxy बोलो फिर भी एक enclosure हुआ. And क्योंकि galaxies भी कई हैं. And they are not thicker than one's skin. Now look at this. The enclosure, it is an enclosure. And the enclosure, the little walls that we have built around ourselves, they are not thicker than our skin. यानी कि वो कह रहे हैं कि जितना आसान है चमड़ी को काटना, उतना आसान है इस enclosure को नष्ट करना. One man's enclosure is the family, another's the nation. One wall divides so-called upper and lower caste. Another divides the people on the basis of religion. Wherever you turn, you see nothing but such walls. Even in this jail, we differentiate between ordinary convicts and political prisoners. It is as if we cannot live without such walls. Not as if, it is true. हम लोगों को differentiation बहुत चाहिए. We revel in living in puddles. Now look at this, the way he says it. You know, this really hit me when you read this. We revel living in puddles. यानी बाकायदा हमारे को पिग बोल दिया उन्होंने. कि हम लोगों को कूक बंदूक बन के ही रहने में सेफ लगता है, भला लगता है. But what does this result into? इस प्रकार का walls के अंदर रहने से क्या परिणाम होता है? Only in the multiplication of the germs of mean and vicious thoughts and destruction of the healthy state of Swadharma. यानी हम ये differentiation करके कितना अपना गुनाह कर रहे हैं. These last two lines, क्या होता है ये इस प्रकार के balls में रहने से? Multiplication of germs. कोई भी puddle हुआ, बारिश के अंदर जगह जगह पानी के छोटे छोटे जो puddles बन जाते हैं, उसके अंदर क्या देखते हैं हम? मच्छर पैदा होने लगते हैं ना. तो इस puddle में भी जिस हम ball के अंदर हमने अपना आपको सीमित रखा है, उसके अंदर germs बनते हैं. कौन से germs? Germs of mean and vicious thoughts. Mean and vicious thoughts. Mean, खाली अपना अपना अपना, मेरा मेरा मेरा, अपने आप के बारे में सोचना is a mean thought. कि ये मेरा है तो उसके लिए मैं करूंगी और ये मेरा नहीं है तो उसके लिए मैं नहीं करूंगी. Mean thoughts. Vicious thoughts, यानी कि मेरा तो अच्छा हो, दूसरे का भले ही बुरा हो या दूसरे का बुरा हो, इस प्रकार का विचार, दूसरों के बारे में गलत सोच. एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ, ये मीन और विशियस थॉट से क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ हेल्दी स्टेट ऑफ स्वधर्म. If we are indulging in mean and vicious thought,
How can Swadharma be there? हम जो स्वधर्म में पैदा ही हुए हैं, वो जो हमारा नेचुरल स्टेट है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है. कैसे? ये मीन विशियस थॉट से, ये संकीर्ण सोच से, ये तेरा मेरा करने में, और अपने आप को शरीर तक सीमित रखने में. और शरीर, हमारा शरीर कितना बड़ा है, अभी हमने जो हमारी व्हाइट लाइट देखी, हम उसी को उतना अपना शरीर समझते हैं. और ये सच है बोले बिना ही कि मैंने ये नहीं कहा कि और कौन कौन है तुम्हारे साथ में, आई कुड हैव डन दैट, बट इसमें भी वेरी नेचुरली यू विल सी कि यू फील सेफ with at least your parents around you, or your family, whatever you consider as yours around you. And वो automatically भी आ जाता है. You see them along with you when you are feeling safe and comfortable. So that is our puddle, and in that only germs of mean and vicious thoughts can germinate. Oof, oof, oof. I don't know. मेरे से आगे पढ़ाई नहीं जा रहा है और this is so heavy. क्या विचार आ रहा है? इसके ऊपर कुछ हम अपने आप को जानने करने का कुछ काम कर सकते हैं? I would like to share something. हाँ, please. I wanted to just say this thing about me and mine gets diluted when you start expanding and including more people. And I have realized that in the last many years, I mean, it's not a question of 5-10 years, almost about now 30-40 years. As it is, as was a joint family, तो सब relatives का वो expanded family था ही. But in my life, I have found out that I am not just a part of my expanded family, but all my cousins, etc., everybody who's got married, I'm part of their families also. I accept them and they accept me. It's like that. And it's not just limited to them, it's even with my friends. You know it. I'm part of your family, I was part of Nishi's family, I'm part of, that way. So even with my school friends everywhere. So it's a total expanded feeling, And I find that very, क्या बोलते हैं, it's very comfortable. There's nothing कि you need to be सीमित रहने की जरूरत नहीं महसूस होती है. So this is about relationship with those who are directly or indirectly your blood relation. But still, there is a wall after that. No, I'm quite comfortable even with me meeting absolute strangers also. But a wall is definitely there. I'm not saying there's no wall. No, what I'm trying to say is that there is still scope for us to expand to correctly get into our Swadharma. Correct. I agree with that. Walls. What I'm trying to say is the starting is there. No? Very good. So the starting is there. Like for example, I still know where is my limitation in the sense that anybody who's aggressive comes in front of me, I withdraw. I'm still not able to deal with that. Then you'll put up a wall. There I'll put up a wall. But if somebody tells me, can I talk to that person? It's not that bad. I will talk to that person. Then I will, get comfortable even with that person. It takes a little bit of breaking down my initial reservations. Once those initial reservations get off, I'm very comfortable. But एक थोड़ा वो warming जो बोलते हैं ना, warming up, वो थोड़ा time लगता है. Of course, but if anybody is totally the kind who continues being aggressive, I will withdraw. वो मेरा वो एक policy है कि मेरा peace of mind के लिए मैं toxic लोगों के साथ में नहीं रहूंगी. There I'll draw the line. So that is a kind of wall, but then that is necessary for self-protection also. Yeah, so that is where we limit ourselves, and that much we are having
to stray away from our Swadharma. Yeah. But sometimes I think Swadharma includes, protecting one's self also, na? वो एक व्यवहारिक धर्म जरूर है, व्यवहारिक है, लेकिन स्वधर्म को जानने पहचानने के लिए ये सारी लिमिटेशंस को क्रॉस करना पड़ता है. तो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू truly recognize and understand one's Swadharma. क्योंकि Swadharma naturally exists and all these walls destroy Swadharma. विनोबा भावे ने ऐसे ही लिखा है ना, डिस्ट्रक्शन और जर्म्स पैदा होते हैं जिससे स्वधर्म नष्ट होता है. तो ये जो हम सोच रखते हैं कि टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, यदि सभी मैं हूं तो मुझसे ही मुझे को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा हो गया. सो देयर हैज टू एग्जिस्ट परसेप्शन which will include any and everybody and not just human beings. It would include any and every living being, any and every non-living thing also, and any and every thing on the earth, including its environment, its atmosphere. उसमें ये भी नहीं कि मेरे को सर्दी तो अच्छी लगती है, गर्मी नहीं अच्छी लगती, बारिश तो अच्छी लगती है, सूखा नहीं अच्छा लगता. उसमें जब तक हम सहज ना हो जाएं हर एक चीज के साथ, तब तक हमें अपना स्वधर्म पालन करने में मुश्किल है, समझ में भी नहीं आएगा और हम अपने स्वधर्म से भटक रहे. Yeah, that reminds me of my chacha telling about a friend of his who lived in a house in, I think, near on the edge of a forest, Bandipur forest or something. He lived somewhere there. And his house, he was saying, cobwebs are there, everything is there, insects roam about, everything roam about. And he was very, it's not that he's not kept it clean, but he has refused to remove the cobwebs. एंड जब उनको पूछा गया कि आपने ये कैसे छोड़ा इनको, सिंह मैं तो बाद में आया, वो तो मेरे से पहले से आए हैं इधर. I have to live with them. I am encroaching their space. Yes, they are not encroaching my life. Yes. So that is, I suppose, a person who found his Swadharma. Yeah. So one has to learn to live with this. रुपिंदर कुछ कहना है? हाँ जी मैम, मेरे को वही पूछना था कि किसी किसी के पर्सन के साथ हमारी लिमिटेशन रह जा. मैम आवाज नहीं आ रही है? आ रही है. कि हमारी लिमिटेशन रह जाती हैं, क्या उसको भी कैसे किया जाए? पॉसिबल है क्या करना उसके साथ? हाँ, यही तो कहा है गीता में, यही कहा है. नहीं वो, हाँ जी, इन्होंने जो कि कोई अपना कोई पराया नहीं है, अल्टीमेटली ये है. हाँ, अब जब प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जब हम आते हैं तो तुम भी वही पूछ रही हो जो अंजलि ने अभी कहा. हाँ जी, क्योंकि ऐसा रहता है. हाँ, राइट. तो हमें इस समय हम किस स्थिति में हैं वो हमने जाने पहचाने, और ये जाने कि हम एक्चुअली वहां पर हैं. यानी हमारा एक्चुअल एक्सपांस इतना सारा है, लेकिन हमने अपने आप को एक प्रकार की सोच में यहाँ पर लिमिट कर रखा है. यानी कि ये संभव है कि मैं इस ढंग से सोचूं. जैसे 20 में से 1-2 बंदा है ही है जहाँ पे हमारा वो नहीं है, वहां तो मेरे को हमें वर्क उसके करना ऊपर पड़ेगा. काम करके अपने दिमाग में से उस बंदे के प्रति जो भी अवधारणा है उसको खुले मन से देख सकना आना चाहिए. व्यवहार में तुम कैसे क्या उसके साथ रहते हो वो एक अलग, क्योंकि वो इस शरीर की लिमिटेशन होती है जो व्यवहार की बात होती है. तो शरीर का तो लिमिटेशन है ही है, लेकिन जो हम असल में जो है वो हम इस शरीर से लिमिटेड नहीं है. हम असल में वसुदैव कुटुंबकम वाले हैं. हमारी सत्ता सब जगह पर है. तो मेंटली हमें अपने आप को फ्री करना है. तो व्यवहार में अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर में हर किसी को आने देना चाहिए. वो इस शरीर की रिक्वायरमेंट है कि ये फिजिकल घर
ये इतना मेरा है। तो ये इस शरीर की रिक्वायरमेंट है। तो इस शरीर को शरीर की तरह देखो, लेकिन इस शरीर को मैं मत समझो, ऐसा कहा है। इस शरीर को जब हम मैं कर समझने लगते हैं, अभी अंजलि ने भी जो बात कही, एंड देन शी इज सेइंग हाउ शी इज एबल टू कम आउट ऑफ इट, कि भाई कोई एग्रेसिव होता है तो मैं अपने आप को खींच लेती हूँ उसके पास से, राइट। वो एक इस शरीर की वो है कि एग्रेशन सहन नहीं हो रहा, वो इस शरीर की लिमिटेशन है। बट एट द सेम टाइम देयर आर टाइम्स व्हेन दिस पर्सन इज नॉट एग्रेसिव, तो उस समय उसके साथ में भी सही व्यवहार कर सकते हैं। ये व्यवहार की बात हुई, लेकिन अल्टीमेटली क्या करना है, जब वो एग्रेसिव है उस समय भी उसके अंदर उस विस्तृत चीज को देख सके, अपना एक्सपांडेड सेल्फ उसको भी देख सके, इंक्लूड कर सके, तो हो सकता है कि हम उसको व्यवहार में भी अलग ढंग से लाएंगे, हमारी जबान भी उनके साथ में अलग हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले तो उसको माइंड के अंदर अपने आप को ये खुलापन रखना है। बाहर शरीर के साथ जो लिमिटेशन हो रहा है उसमें से बाहर निकल के अपना मेंटली उसको खोलना है। हम क्या करते हैं कि शरीर का जो लिमिटेशन है वो अपने आप को अंदर भी ले लेते हैं। यही यहाँ पर पूरे इस पैराग्राफ में यही एक बात कही है कि हम इस डिल्यूजन में जीते हैं कि हम इस शरीर से लिमिटेड हैं। मैम मेरे को एक पर्सनली मैं पूछ सकती हूँ, मेरे को पूछ लो। समझ आ रहा है आप जो बोल रहे हो, एक पर्सनली क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ। मेरे को एक आदमी के साथ बहुत ही, वो भी मेरे साथ ईगो रखता है और मेरे को भी अंदर से स्ट्रॉन्ग ईगो फील होता है कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना, अगर वो बुलाएगा भी तब भी मैं जवाब नहीं दूंगी, बिकॉज मेरे को वहां से भी फील हो रहा है। तो इसका मतलब ये है क्या वो ईगो मेरे में बहुत स्ट्रांग है इसलिए उसके अगेंस्ट में फील हो रहा है क्या? उसको मुझे चेक करना है। तेरे में स्ट्रॉन्ग ईगो तो सभी में रहता है, लेकिन उसके लिए उसको स्ट्रांग देखकर है, तेरे उसको क्लेश ब्रेक कर उदार नहीं हो जाते पाती हैं। हूँ, उसको ब्रेक नहीं कर पाती हूँ, हाँ, उसके अगेंस्ट वही में तो बोल रहे हैं ना, ज्यादा उसको रिएक्ट देख के करती हूँ क्लेश मैम। उदार हो जाते हैं। हाँ जी। और तो अपने क्लेशों को समझना पड़ेगा, और उसका कारण होगा कुछ ना कुछ मिसपरसेप्शन है या कोई ना कोई कर्म बंधन है जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ रही है। तो क्या उसका कारण है, कौन सा वो थॉर्न है, विनोबा भाजी की भाषा में कहूँ तो, व्हाट इज दैट थॉर्न दैट इज मेकिंग दिस पर्सन पोक यू लाइक दिस। तो सेम फॉर फॉर दैट आई हैव टू मैम, स्टडी माय ऐसा बिहेवियर। मेरे पास भी, मेरे साथ भी है। मतलब सम पर्सन, मतलब मेरी फैमिली में जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मतलब कि नॉर्मल इंसान। लेकिन मुझे वो परसेप्शन ऐसा हो गया है, मैं कितना भी चाहूँ ना तो मैं उनको देख ही नहीं सकती, मुझे फॉल्टी लगता है। मुझे राइट मैम, कुछ भी मेरा वो भी। सही, वो बोले कि ये सही है, उन्होंने जो मेरे से बात की है वो दूसरे से भी किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझे ही जानबूझ के ऐसा ही बोला। सो मेरे को भी सेम है मैं ऐसा ही कितना फील होता है। कितना चाहती हूँ कि ये सॉल्व हो। ऐसे दो लोग हैं मेरी लाइफ में। मैं तो दो ही है, चाहती भी नहीं हूँ मैम अच्छा यस, सॉल्व दो ही हो, है। ऐसा नहीं दो ही है, दो ही है, दो ही है। बाकियों से तो मिली नहीं है। और ऐसा। होंगे तो इस हाँ, अभी तक तो उनसे मिली नहीं है। नहीं लेकिन जब अभी भी फिलहाल कभी तो हम वो ऐसे लोग लोगों ऐसे। के समक्ष होते हैं तो सबसे पहले तो ये जान लो कि कोई ना कोई हमारा कर्म बंधन है। आगे आएगा गीता में भी यही बात। लेकिन अब तुमने ये बात रेस की है तो इट्स नो हार्म एटलीस्ट टू बिगिन थिंकिंग ऑन दिस। योग में भी हम कर्म की बात यही करते हैं कि जाति आयु भोग इज ऑल डिसाइडेड बाय आवर कर्मस, राइट। तो ये जो जीव है जो सर्वव्यापी है, पुरुष है, that has got attached to this subtle body and has entered this physical body of the human being that we have taken. और इसके अंदर जो कर्म तुमने इस जीवन के अंदर फलीभूत करके उसको चेंज करने का तय किया है, वो सिचुएशन पैदा करने के लिए चीजें भी होती है और लोग भी आते हैं। तो ये जो एक जन है, दो जन है, जितने भी जन है, जिनकी वजह से हमारा इस प्रकार से ये वॉल क्रिएट करना होता है,
जो भी कुछ नेगेटिव आते हैं, जो थॉर्न्स हमारे रास्ते में बनते हैं, ये जान लो ये तुमने चूज किया है कि इस जन्म में मुझे इसको चेंज करना है, इसलिए वो तुम्हारे सामने आ रहे हैं। तो every time you are faced with this situation, see what can you change in yourself so that they don't affect you in this manner. And usually there is some kind of a negative experience that they are evoking in you, which is from your past karmas. It could be from this life also, it could be earlier also, you don't know. हमें तो याद तो रहता नहीं है इतना सब, और हम कनेक्ट कर नहीं पाते हैं इतना। कर्म का कनेक्शन कैसा होता है हमारे को इतनी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम स्वधर्म में नहीं है। तो जो भी हमारी लिमिटेशन है उसके बावजूद देयर आर एटलीस्ट ट्रायल एंड एरर मेथड। और योगिता, रुपिंदर, अंजलि तीनों को कह सकती हूँ, तुम लोगों ने VCT सीखा है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। मैम मैं करती हूँ, करते ही हो। मैं करती हूँ जैसे ही वो हाँ। दिमाग में आ जाता है, देखती Very हूँ, हो good. जाता है तो करते करती हूँ। रहो। लेकिन मतलब somehow मतलब वो ऐसा हो गया है ना कि बस इसको नहीं। ऐसे ही देख। तो खाली उस एक सिचुएशन पे तुम करते हो ना, उसकी जड़ में जाना चाहिए ना, उसका जो कारण है वो जब आता है सामने उसके ऊपर भी टैपिंग करनी पड़ेगी ना। The cause of it and the cause of it and the cause of it. If you remember level 2, 3, 4 that you did, 2 के अंदर हमने क्या किया? To work on the cause. तो वो cause को भी, वो जब सामने आती है बात, लेकिन तुम खाली लॉजिकली उसको कनेक्ट करना चाहो तो वो cause नहीं दिखेगा। Sometimes the cause is wavered. It doesn't seem to be logically connected. लेकिन जो भी कॉज सामने आता है उस कॉज को निकालना है, उस कॉज को अपने आप के अंदर से चेंज करना है। तो वो कॉज में से कॉज निकल के एंड देन यू हैव टू चेंज दैट एंटायर स्टोरी। तो जो भी अनकनेक्टेड, इट साउंड्स लाइक अ स्टोरी टोल्ड बाय अ किड कि एक पंखा था और उधर एक लाइट थी, फिर वो बिल्ली ऊपर चढ़ गई, ऐसा होता है वो कॉज। तो entire that story has to be then rewritten in the positive manner, in a sensible manner, तभी वो पूरा निकलेगा। लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो जान लो कि हम ये तो मानते ही है ना that this world is a reflection of us। तो यदि कोई तुम्हें इस प्रकार से चिढ़ा रहा है, यानी कि वो चिढ़ तुम्हारे अंदर ही है ना, और वो तुम्हारे अंदर वो एक जो कुछ खराब है उसको तुम्हारे सामने रख रहा है, is bringing out that worst in you, so that Ma'am, worst इसका- needs to be repaired, Ma'am, and you've chosen that in this life you want to repair it, and therefore it is coming to you। यस मैम, जाने से पहले पूरा क्लियर करके जाने का ऐसा सोच के रखता है। हाँ, तो यदि कोई ऐसा आता है तो सबसे पहले तो थैंक यू। यस, ओके। हाँ, because that person is helping you to bring that karma of yours to the surface for you to heal it, क्योंकि तुमने मांगा है कि इस जन्म में मैं उसको ठीक करके जाऊंगी, और ये व्यक्ति तुम्हारी हेल्प कर रहा है, वो परसेप्शन कर्म चेंज तुम्हारे करना। सामने ला रहा है, तो उसके ऊपर तुम काम कर सको। स्वधर्म में वो थैंक यू अपने तरफ से है, होता है। सॉरी, in my life, there's one person, like my dad used to say about, say this, कि अगर एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों को ब्लेम करता है कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, प्रॉब्लम 10 व्यक्तियों में नहीं है, प्रॉब्लम उस एक व्यक्ति में है। तो अभी मेरे लाइफ में एक व्यक्ति ऐसा है जिससे मैं दूर रख रही हूँ, क्योंकि ही इज द काइंड ऑफ पर्सन कि वो सबको पूरा बोलता है और सब लोग उससे परेशान है। Nobody wants to be in touch with him. So सब with लोग उससे that kind of a person, तो इमेजिन, क्या मैंने कहा इमेजिन वो व्यक्ति, सच इतने, मेरा ये है कि इस सिचुएशन में हमसे ज्यादा उसको काम करना है। लेकिन वो तुम लोगों से परेशान नहीं है ना, तुम लोग उससे परेशान हो।
So the fault is of the sufferer. He is equally pareshan with us. That's why he finds faults ना. हर एक में वो नुक्स निकालता है. हाँ, तो वो हर नुक्स एक को वो निकालता है, दोष लेकिन देता है. उसके नुक्स निकालने से यदि तुम लोग परेशान होते हो तो प्रॉब्लम इज योर्स. वो नुक्स निकालता है, उसको नुक्स निकाल के संतोष मिलता होगा, हो सकता है उसका ऐसी यही कर्म है. दैट्स अप टू हिम. वो नुक्स निकालता है तो probably that's up to him to find out that actually he must be having all those faults in himself. But if he is not the karma yogi, he doesn't want to work on himself, वो स्थित प्रज्ञा के रास्ते पे नहीं चल रहा है, उसको स्वधर्म नहीं करना है, तो नो इश्यूज विद इट. हम लोगों ने चुना है कि हमको स्वधर्म पालन करना है. Yes, ma'am. Thank इसलिए you very हमारे much. लिए वो काम है. नहीं तो ठीक है ना, लोग जीते हैं सारी जिंदगी बिना कुछ किए, बिना सुधरे, जैसे आते हैं वैसे के वैसे चले जाते हैं. वो भी होता है. तो दैट्स परफेक्टली ओके फॉर देम. क्योंकि हमने चुना है कि हम जो कर्म लेकर पैदा हुए हैं उसको हमें निपटा कर जाना है, तो हमें इस प्रकार से देखने की जरूरत है. हम सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना है ना. हाँ, क्योंकि हमने चुना है. रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ही होती है और किसी की नहीं होती है वो. Now I can see the things clearly. पहले क्लियर हुआ अभी. Yes, पहले मैं सोच रही पता थी. नहीं, तेरी आवाज तो आ रही है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा तुम मेरे को. तो कैन यू ऑल अदर्स हियर रुपिंदर? Yes, Yeah, I can hear. हो सकता है Yes, क्योंकि sir. बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पर. मैंने Yes, खिड़की बंद yes, रखी है we can फिर hear. भी. Hmm. Yeah, it is raining, ma'am. It's हाँ, thundering. heavily बहुत बहुत हो रहा है. थंडरिंग हो रहा है. तो Yes, carry on, but, Rupinder, you can say. but ma'am, okay, so I'll speak later then. Okay. Okay. Okay, thank you, ma'am. हाँ जी, thank you, ma'am. I don't know. Can't hear. बोल पाया. You're on mute, Rupinder. हाँ, 4 बज गए. सॉरी, योगिता को जाना होगा. Yeah, हाँ. ma'am, it's in fact हाँ. it's गीता को 9 जाना past. होगा, बोलना. प्रियंका को जाना almost- होगा. Yeah. We'll continue the talk next time. Okay. Okay, चलो, ma'am. bye. ठीक है. हाँ नहीं. Wow, Thank what a you. Everyone powerful is- paragraph, no? What You just so powerful, but ma'am, what you have said is, it's true, but it's a difficult path. That's what he started by saying that. Vinoba Bhave also started by saying that. It is difficult, but not to impossible. yeah, but I am on that verge where I feel that I am creating more problems than solutions. But of course, internally, Bahar, I am absolutely fine trying to understand this. वो That तो हम लोग मुझे बहुत ही होशियार इतना हैं. हाँ कि मुझे इतना irritation मुझे ही क्यों ये हो रहा है? Why is it happening to me just now? तो काम Like बाहर I हो am रहा है, अंदर जितना बाकी है. कचरा निकालने की कोशिश कर रही हूँ उतना और निकल रहा है और नहीं, निकल रहा यानी कि अच्छा है ना, यानी कि तुमने इतना सारा कर्म खत्म करने का तय किया है. है. इतना सारा बाप रे. हाँ, पैदा होने से पहले ही वो स्वधर्म तो बन गया था ना. हाँ. तो अच्छा है. बी थैंकफुल. Okay. या. चलो. Okay, ma'am. Namaste, everyone. That's Thank you. quite Thank you, everybody. inspiring. Thank you. Bye. Thank you. Thank Bye. you. Bye. Bye. Bye.